میں بات کریں گے رمضان کے آخری عشرے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا عمل۔ ملک بھر میں لاکھوں فرزندان توحید اعتکاف بیٹھ گئے۔ فیصل آباد ڈویژن کی مساجد بھی متقفین سے بھر گئیں۔ روزہ دار تنہائی میں تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور نوافل کی ادائیگی کریں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ فیصل آباد میں فرزندان اسلام کے اعتکاف کی سنت کی ادائیگی کرنے لگے۔ جامع مسجد سنی رضوی جنگ بازار میں اعتکاف کا خصوصی اہتمام۔ علامہ اکرام کا کہنا تھا کہ اعتکاف کے دوران خصوصی عبادت کی جاتی ہے جس میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جنگ میں فرزندان اسلام کی بڑی تعداد اعتکاف کی ادائیگی کے لیے فیضان مدینہ پہنچ گئی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی فرزندان اسلام سنت اعتکاف ادا کر رہے ہیں۔ فیضان مدینہ میں 1000 سے زائد فرزندان اسلام اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ چنیوٹ میں ماہ سیام کی بابرکت گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے متقفین نے اعتکاف کر لیا۔ کہتے ہیں اعتکاف کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ اعتکاف کرنے سے انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھ گئے۔ علامہ منعم حسین صدیقی نے متقفین کو اعتکاف بارے رہنمائی فراہم کی۔ اللہ کی خوشنودگی کے لیے اللہ کے گھر میں قیام کرنا اعتکاف ہے۔ متقفین جہنم کی آگ سے پاک ہو جاتے ہیں اور رحمت کے حقدار ہیں۔ احمد پور سیال میں بھی فرزندان اسلام اللہ سبحانہ وتعالی کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھ گئے۔ شوال کا چاند نظر آنے تک متقفین مسجد میں قیام کریں گے۔ فرزندان اسلام مختلف مساجد میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ ناظرین، اعتکاف رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت۔ سیام میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری عشرہ اللہ کی یاد میں صرف کرے۔ مزید جانیں فصیح نقوی کی رپورٹ میں۔ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسلمان خصوصی طور پر اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو بہت پسند فرمایا ہے۔ آدمی رمضان کے آخری 10 روز دنیاوی کام چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے، قرآن کی کثرت سے تلاوت اور نوافل ادا کرے۔ اعتکاف ہے کہ 10 دن کا اعتکاف یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور مومن مسلمان پر ہمت ہو تو وہ ضرور 10 دن اعتکاف جو ہے وہ کرے، اور اس میں ہزارہ برکتیں ہیں کہ اعتکاف کا مقصد جو ہے وہ دنیا سے کٹ ہو کر، دنیا سے جدا ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ علماء کرام کا مزید کہنا تھا کہ اللہ فرماتا ہے تاک رات کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ حدیث میں ہے کہ اگر کچھ علاقے سے چند لوگ بھی اعتکاف پر بیٹھ جائیں تو باقیوں کے لیے بخشش کا سامان بن سکتے ہیں۔ خصوصاً نوجوانوں کو چاہیے اعتکاف میں بیٹھیں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اسلام میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے 20 رمضان المبارک کی نماز عصر سے لے کے سورج غروب ہونے سے پہلے اور شوال مکرم کا چاند نظر آنے تک، یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت الاعتکاف علی الکفایہ ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح یہ بھی سنت الکفایہ ہے کہ اگر محلے بستی گاؤں میں سے چند لوگ بھی بیٹھ جائیں تو باقی لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس کی رضا کی خاطر دنیا کی بجائے دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ستھرا پنجاب مہم بغیر ٹارگٹ پورا کیے آج ختم۔ فیصل آباد ڈویژن میں صفائی ستھرائی مکمل نہ ہو سکی۔ گلی محلوں، بازاروں اور شاہراہوں کی صورتحال جوں کی توں۔ کوڑا کرکٹ، سیوریج وزیر اعلیٰ کے ویژن کا منہ چڑھانے لگے۔ مہم کے آخری روز بھی فیصل آباد کا میر ٹاؤن توجہ کا منتظر۔ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل، گلیاں تالاب بن گئیں۔ 18 ہزاری میں بھی جگہ جگہ سیوریج کا پانی، کچرے کے ڈھیر۔ شورکوٹ میں بھی سیوریج کا پانی وبال جان بن گیا۔ پانی دا ہے بہت مسئلہ، 2-3 سال دا یہ پانی پی رہا وا، بس گھر والے پانی دے پیسے دے رہے تو پانی پوا رہے۔ ہاٹ دا مکان جنہاں دے نال ہے انہاں نوں بہت مشکلات، ساڈے گھر دے نال ہے، ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ، میرے پوتریاں پوتری ڈگ بھی سکدے پانی۔ 4 سال سے یہ ایسے ہی ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا بھی خطرہ ہے، اور ہمارے مکانوں کی بہت تباہی اتر رہی ہے، ہمارے مکانوں کی، ہمارے گھروں کی، اس لیے ہم بہت پریشان ہیں۔ جھنگ کا واحد انڈر پاس انتظامیہ کی غفلت کا شکار۔ 2 روز قبل ہونے والی بارش کا پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ بارشی پانی جمع ہونے کے باعث راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ میونسپل کمیٹی شہر کی صفائی میں ناکام نظر آتی ہے۔ بارش کے بعد نکاسی آب کا کوئی نظام موجود نہیں۔ ضلع کا واحد انڈر پاس انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل۔ 2 روز قبل ہونے والی بارش کا پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ میونسپل کمیٹی کے پاس کوئی مؤثر حکمت عملی موجود نہیں۔ نہ ہی شہر میں صفائی کے مناسب انتظام موجود ہے اور نہ ہی بارشی پانی کی نکاسی کے لیے کوئی نظام۔ کئی روز بارشی پانی جمع رہنے کے بعد خود ہی خشک ہو جاتا ہے۔ ضلع انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں
इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बारिश नहीं आई कि यहाँ पानी खड़े हो जाते। सिर्फ इसका जो पानी का एक पैसेज है टुवर्ड द कुआं या डल, वो बंद हुआ, ब्लॉक हुआ है। उसके अंदर अगर बांस फिरवा दिया जाए तो ये भी 10 मिनट के अंदर अंदर सारा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा। गोजरा रोड अंडरपास आए रोज ज़बूहाली का शिकार होने लगा। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। बारिशी पानी जमा रहने के बायस डेंगू मच्छर की अफजाइश का अंदेशा, मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। असल में ये अंडरपास का मकसद ही फौत हो जाता है। हमेशा जब भी बारिश आती है कोई मसला बनता है, यहाँ पानी रुका होता है। और मैं तो 10-15 सालों से देख रहा हूँ, कभी भी पानी जो है ना कुदरती तौर पर खुश्क होता है, इंतज़ामिया की तरफ से इसे खुश्क नहीं किया जाता, कोई नल वगैरह नहीं चलाई जाती, तो राहगीरों को भी बहुत मुश्किलात होती है और बीमारियाँ फैल रही हैं और इसकी लाइफ कम हो रही है, तो यहाँ बड़ी मसाइल का शिकार है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने और म्यूनसिपल कमेटी को सफाई के बेहतर इंतजाम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का इम्कान, पेट्रोलियम पंप माफिया ने सेल रोक दी। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा के मुताबिक पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोलियम नहीं दिया जा रहा। पेट्रोल न मिलने से शहरियों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफा, भवाना में पेट्रोल नायाब हो गया। मोटरसाइकिल समेत दीगर गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल न मिलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। भवाना में इंतजामिया पंप मालकान को नकेल डालने में नाकाम, शहरी पेट्रोल और डीजल के असूल के लिए रुल गए। जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की फराहमी रोक दी गई। दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को दुश्वारी का सामना। भाईजान पहले पेट्रोल देंदे रहे, पेट्रोल पंप वाले जिवें इन्हां नूं पता लगा पेट्रोल महंगा हो गया, इन्हें पेट्रोल देना बंद कर दिता है। आवाम बड़ी तंग तो जलील है, ये निजायज फायदा उठाते पे पेट्रोल पंप वाले, जो सिर्फ पैसे से लालच। आवाम तंग है कि नहीं फौतगी हो जाए, उधर बंदा नहीं जा सकता। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि पंप मालकान की मुनाफाखोरी अवाम पर भारी पड़ने लगी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के इम्कान के पेश नज़र पंप मालकान ने सेल बंद कर दी, कोई भी पेट्रोल देने को तैयार नहीं। शहरियों का कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में कहीं पहुंच नहीं सकते। पेट्रोल पंप मालकान के पास पेट्रोल और डीजल वाफिर मिकदार में मौजूद है, मगर रेट बढ़ने की वजह से मुनाफाखोरी के लिए अवाम को जलील कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात, चिकन और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलू 50, प्याज 175, अदरक 585, टमाटर 90 रुपए किलो मुकर्रर, लीमू 115, फूल गोभी 32, टिंडे 40 और बैंगन 65 रुपए किलो हो चुके। खीरे 30, मटर 120, पालक 40 और शिमला मिर्च 130 रुपए किलो मार्केट में दस्तयाब हैं। गाजर 40, भिंडी तोरी 330 और करेला 230 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि सेब 315, स्ट्रॉबेरी 120, अनार 640, अमरूद 180 रुपए किलो में बिकने लगे। फैसलाबाद में सब्जियों, सब्ज मसाला जात, चिकन और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलू 50, प्याज 175, अदरक 585, टमाटर 90 रुपए किलो मुकर्रर, नींबू 115, फूल गोभी 32, टिंडियां 40 और बैंगन 65 रुपए किलो हो चुकी है। खीरे 30, मटर 120, पालक 40 और शिमला मिर्च 130 रुपए किलो मार्केट में दस्तयाब है। गाजर 40, भिंडी तोरी 330 और करेला 230 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सेब 315, स्ट्रॉबेरी 120, अनार 640, अमरूद 180 रुपए किलो बिकने लगे। खजूर 460, अंगूर 500 रुपए किलो, केला 185 रुपए दर्जन हो गए। टोबा टैक्सिंग में भी सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतें ऊपर नीचे। अदरक 30, सब्ज मिर्च 15 और टमाटर 4 रुपए मजीद महंगा। आलू 52, टमाटर 94, लहसुन 580, अदरक 570 रुपए किलो मुकर्रर, सब्ज मिर्च 110, लीमू 120, शिमला मिर्च 160 रुपए किलो दस्तयाब। सेब 310, खजूर ईरानी 470, अमरूद 170, केला 190 रुपए दर्जन। शहरियों का इंतजामिया से अशिया खुरनोश की कीमतों में रिलीफ का मुतालबा। जंग में सब्ज मसाला जात, सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। प्याज 178, आलू 54, लीमू 120, टमाटर की कीमत में 4 रुपए का इजाफा 94 रुपए किलो। अदरक 560, लहसुन 600, भिंडी 20 रुपए सस्ती 320 रुपए, पालक 35 रुपए किलो, मूंगरे 90, टिंडियां 40, शिमला मिर्च 140, मटर 25 रुपए महंगे 110 रुपए किलो, कद्दू 95, बैंगन 65, शलजम 24, सब्ज मिर्च 20 रुपए सस्ती 90 रुपए किलो, सेब काला 315, खरबूजा 160, अनार 540, अमरूद 185 रुपए किलो मुकर्रर, स्ट्रॉबेरी 120 रुपए किलो, केला 195 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगे।
बंद गोभी 5 रुपए महंगी 80 रुपए, फूल गोभी 28 रुपए किलो पर हो गई। मुर्गी का गोश्त महंगे नर्क पर बरजमान 634 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम। अंडे मजीद 2 रुपए महंगे हो गए, नर्क 281 रुपए फी दर्जन पर पहुंच गए। शहरियों का चिकन, फल और सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा। अहमदपुर सियाल में ब्रॉयलर गोश्त के दाम 6 सेंचुरियों का भी क्रॉस कर गए। चिकन 620 से 650 रुपए किलो बिकने लगा। माए सियाम में ब्रॉयलर गोश्त मुतवसत तबके की पहुंच से दूर। ब्रॉयलर गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चनियोट में सब्जियां और सब्ज मसाला जात की कीमतों में मिला जुला रुझान। प्याज 20 रुपए सस्ता तो टमाटर 10, मटर 20 रुपए किलो महंगे, आलू 50, प्याज 170, टमाटर 90, लहसुन 590 रुपए किलो पर बरकरार। अदरक 550, भिंडी 10 रुपए कमी के बाद 290 पर आ गई। मटर 20 रुपए इजाफे के बाद 80, गोभी 75 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। सब्ज मिर्च 115, लीमू 95, शिमला मिर्च 135 रुपए किलो मुकर्रर। सेब 315, खजूर 310 रुपए किलो, केला 185 रुपए दर्जन, अनार 350, अंगूर 500, स्ट्रॉबेरी 100 रुपए किलो फरोख्त। और नाजरीन, बिजली मजीद महंगी होने पर फैसलाबाद ताजिरों का तशवीश का इजहार। कहा, हुकूमत IMF की शराइत को पूरा करने के लिए सारा बोझ अवाम पर लाद रहे हैं। अवाम दुश्मन फैसले से रहे सहे कारोबार बंद हो जाएंगे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां, बिजली फी यूनिट 2 रुपए 75 पैसे महंगी हो गई। फैसलाबाद के ताजरों ने तशवीश का इजहार कर दिया। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना गफूर कहते हैं, IMF की शराइत को पूरा करने के लिए सारा बोझ अवाम पर लाद रहे हैं। पहले से महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के साथ जुल्म है। अब तो बिजली का कोई अंदाजा हमें रह ही नहीं गया कि क्या 35 रुपए यूनिट से शुरू होके अब 90 रुपए यूनिट पे चला गया। ये हमारी जो मशीन है, इसकी एक मशीन का बिल जो है वो 15,000 रुपये आता था। इस दफ़ा इसका बिल जो है वो 65,000 रुपये आया है एक मशीन का। और जो आगे बिजली का रेट बढ़ के अगले महीने हमें आने हैं, उसमें आप ये देख लें कि हो सकता है 70,000 रुपये इसका एक का हो जाए। जब 70,000 रुपये हमने सिर्फ बिजली की मद में दे देना है तो हमने क्या कमाना? हमने अपने मजदूरों को क्या देना? नायब सदर मियां तारिक का कहना था कि बिजली मजीद महंगी होने से मजदूर तबका बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला है। एक मशीन का बिल पहले 15,000 रुपये आता था, अब 65,000 रुपये पर पहुंच चुका है। मरीम नवाज ने अभी 5 रुपए यूनिट मजीद महंगा हो गया। आप 2 रुपए 35 पैसे करें, 5 रुपए यूनिट मजीद महंगा हो गया। पेट्रोल की आवाज़ है महंगा होने की, और काम है नहीं। अब हमारी मशीन जैसे 1.5 करोड़ रुपए की है तो इसकी डेप्रिसिएशन है, 5 साल बाद मशीन रह जाती है 30 लाख रुपए की, तो इसकी डेप्रिसिएशन है। तो और जब काम नहीं होगा, प्राइसेस इतनी ज़्यादा महंगी होंगी। 15,000 रुपया इस मशीन का बिल होता था, 15,000 रुपये, 12-15,000 रुपया, अब जो है वो 70-75,000 रुपये आ रहा है। सनतकारों ने कहा है, पहले ही अपने कारोबार को मुश्किल के साथ चला रहे हैं, ऊपर से हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी कर दी है। पेट्रोल महंगा करने की तैयारियां भी जारी हैं। साजगार माहौल तो दूर की बात, इन हालात में कारोबार चलते नजर नहीं आ रहे। कैमरा टीम के साथ शराज बट, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को ने बिजली महंगी करने के बाद शहरियों पर एक और बॉम्ब गिरा दिया। नए बिजली मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फेस्को ने पुरानी दरखास्तों पर नई कीमतों के डिमांड नोटिस निकाल दिए। सार्फिन परेशान, फेस्को हुकाम से डिमांड नोटिस की कीमतें कम करने का मुतालिबा। फैसलाबाद में डिमांड नोटिस की बढ़ती कीमतों पर सार्फिन परेशान। फेस्को ने पुरानी दरखास्तों पर नई कीमतों के डिमांड नोटिस निकाल दिए। नई कीमत देखकर सार्फिन फेस्को पर बरस पड़े। बोले, पहले बिजली महंगी की, अब नए मीटर्स लगवाने पर डिमांड नोटिस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। गरीब आदमी कहा जाए, शिकायत करने चाहे तो अफसरान बात सुनने को तैयार नहीं होते। सार्फिन का मजीद कहना था कि 3 माह से डिमांड नोटिस नहीं मिल रहे, अब डिमांड नोटिस मिलने लगे तो इजाफे के साथ दिए जा रहे हैं। जब दरखास्तें दी तब कीमतें कम थी। फेस्को की तारीख का खमियाजा हम क्यों भुगतें? जो डिमांड नोटिस पहले जमा करवाया था उस वक्त पूछा तो 12,000 कुछ रुपए थे, और अब जो है नया डिमांड नोटिस वो 15,000 कुछ है। तो इसकी फेस्को की नाअहली है। इस पे हम फेस्को के आला अफसरों से गुजारिश करेंगे कि इस पे तवज्जो दें। सार्फिन का मजीद कहना है कि फेस्को अमला फरवरी की दरखास्तों पर इजाफी डिमांड नोटिस भेज रहा है। आला हुकाम नोटिस ले। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ वैसली, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में SNGPL की गैस चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। छापामार टीमों ने एक महीने के दौरान 550 से ज्यादा कनेक्शंस की चेकिंग के दौरान 42 लाख से ज्यादा की गैस चोरी पकड़ी गई। गैस टास्क फोर्स ने गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन को तेज कर दिया। SNGPL टास्क फोर्स के सरबराह राशिद हमीद के मुताबिक छापामार टीमों ने एक महीने के दौरान 550 से ज्यादा कनेक्शंस की चेकिंग की। कार्रवाइयों में 42 लाख रुपए से ज्यादा की गैस चोरी पकड़ी गई। गोजरा के अलावा नदीम कॉलोनी में गैर कानूनी सर्विस लाइन भी पकड़ी गई। गैर कानूनी लाइन के जरिए कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। गैर कानूनी लाइन डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैस चोरी और गैर कानूनी इस्तेमाल पर 100 कनेक्शन मुनक़ता।
बिजली चोरी करने वाले हो जाएं होशियार, बिजली चोरों की गिरफ्तारी लाजमी करार। गुज़श्ता 3 माह में 5,742 चोर गिरफ्तार। फेस्को ने पावर डिवीजन को बिजली चोरी की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक आगाह किया। मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी है। इस दौरान गिरफ्तारियों और बड़े पैमाने पर जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। बिजली चोरों को वापडा एक्ट के मुताबिक सजाएं। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं होगी। बिजली चोरों की गिरफ्तारियां करवाई जा रही हैं। बिजली चोरी संगीन जुर्म है, बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं होगी। एफबीआर का चीनी के कारोबार में टैक्स चोरी रोकने के लिए अहम इक़दाम। टैक्स स्टैंप के बगैर चीनी का कारोबार करने वालों के गोदामों पर छापे मारे जाएंगे। कानूनी खिलाफवर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना या चोरीशुदा टैक्स का 200% तक पेनल्टी आयद की जाएगी। मार्केट्स में स्टॉक की चेकिंग शुरू कर दी गई। इक़दाम से टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया जा रहा है। एफबीआर के मुताबिक फील्ड फॉर्मेशंस की टीमें मुल्क भर की शुगर मिल्स पर तैनात कर दी गई।